السلام علیکم ممبرس، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ باہم تھامدے عائشہ ذوالفقار، قسط نمبر 8۔ ہمیں بہت سے لوگ کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ درمیان میں کا ناول شروع کر لیے ہیں، تو برائے مہربانی ڈسکرپشن کے اندر اس کی ساری ایپیسوڈز موجود ہیں، آپ وہاں پر سے جا کے یہ پڑھ لیں، کیونکہ شدت کی وجہ سے بہت سے ناولز ہمارے ڈسٹرب ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے کافی زیادہ کام جو ہے وہ پینڈنگ پہ چلے گئے تھے۔ اب آہستہ آہستہ کر کے آپ سب کے مشورے کی بدولت ہم لوگوں نے فی الحال دو ناولز یا تین ناولز کر کے کریں گے، لیکن اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پہلے کون سا کریں۔ تو ہمارے ساتھ دیجیے، ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ ڈسکرپشن میں اس کی پرانی ایپیسوڈز آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے دیکھ کر پھر اس کو یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چلیے جی، اس ناول کو تو سٹارٹ کرتے ہیں قسط نمبر 8 کے ساتھ۔ اے یاسمین! رخسانہ کی دھاڑ سن کر یاسمین بکھلا کر باہر نکلی۔ زرینہ بھی بھاگ کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ حمزہ اندر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ رخسانہ نے اسے زور سے یاسمین کی طرف دھکا دے دیا۔ پوچھ اسے، پوچھئے کیا کہہ رہی تھی اسے؟ وہ بھڑکی۔ اسے بدکردار کہہ رہی ہے تیری باکردار بیٹی۔ وہ چیخ پڑی۔ یاسمین دم بخور رہ گئی۔ امی کیا ہو گیا؟ زرینہ نے ان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، اس چٹانگ بھڑکی لڑکی سے پوچھ کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ ابھی ان دونوں کی شادی کو 1 مہینہ نہیں ہوا اور یہ اس کے منہ پر کھڑی ہو کے اسے لوگوں کی زبانوں سے ڈرا رہی ہے۔ رخسانہ ایک دم پھٹ پڑی۔ نائمہ غصے میں سرخ ہو کر اپنا ایک ہاتھ گال کے اوپر رکھ کر بیٹھی تھی۔ حمزہ نے انتہائی ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آخری بار کہہ رہی ہوں یاسمین کہ اپنے بچوں کو سنبھال لے۔ اگر اس لڑکی کے کردار میں واقعی کوئی خامی ہے تو ثبوت کے ساتھ میرے سے بات کریں، ورنہ میں نے زبانیں کاٹ دینی ہے سب کی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں نے صبر کا گھونٹ پی کر زندگی گزارنی، لیکن جو میرے ساتھ ہوا وہ نہ میں اپنی کسی بیٹی کے ساتھ ہونے دوں گی اور نہ کسی بہو کے ساتھ۔ میں نے اب ان دونوں کا اس قسم کا رویہ دیکھا تو میں نے سیدھا سیدھا شفیق کو کال کرنی ہے اور اسے کہہ دینا ہے کہ آ کر اپنا حصہ الگ کر لے۔ رخسانہ انتہائی غصے سے کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ دفع ہو جا، چل تو اپنے کمرے میں، یاسمین نے غرا کر زرینہ کو کہا۔ وہ بادل نخواستہ سی واپس چلی گئی۔ انہوں نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، علینا کے بالوں سے پکڑا اور اس کے 2 تھپڑ مزید لگائے۔ شادی طے ہوئی اویس اور رملہ کی۔ انکار کیا اویس نے۔ نکاح ہوا زبیر کا۔ بیچ میں آئی شرمین۔ تم دونوں نے کس خوش میں بغیرت پنا کھلارا ہوا ہے؟ وہ اس پر برس پڑی۔ نائمہ رونے لگ گئی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیوں اتنی بری لگتی ہے وہ تجھے؟ انہوں نے دوبارہ نائمہ کو جھنجھوڑا۔ چل امی، بس کر۔ حمزہ سے اسے روتے دیکھا نہ گیا۔ اچھا، کر دیا بس۔ تو بتا دے، تجھے کیوں جن چڑھ جاتا ہے ان دونوں کو دیکھ کر؟ یاسمین نے اسے گھرکا۔ حمزہ بول نہ سکا۔ بول، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے حمزہ کی ایک لگائی۔ مجھے وہ بالکل برداشت نہیں ہوتی زبیر کے ساتھ۔ حمزہ یکدم پھٹ پڑا۔ کیوں؟ تیری مشوق تھی وہ؟ یاسمین تڑخی۔ ہاں تھی۔ وہ زور سے بولا۔ یاسمین نے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ نائمہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ حمزہ؟ یاسمین کو یقین نہ آیا۔ مجھے وہ اس دن ہی اچھی لگ گئی تھی جب پہلی بار اسے دیکھنے گیا تھا۔ اب اس نے انکار کر دیا تو میں نے سوچا میں اس سے نکاح کر لوں گا، لیکن یہ سارا زبیر بیچ میں کود پڑا۔ حمزہ کہتا چلا گیا۔ حمزہ، بس اب زبان بند کر لے، وہ زبیر کی بیوی ہے، سمجھا؟ آج کے بعد میں تیری زبان سے یہ بکواس نہ سنوں۔ یاسمین نے کہا۔ واہ، اب مسئلہ بتا دیا تو حل نکالے نا اس مسئلے کا۔ وہ تڑخا۔ میں نے بوتھا سجا دینا ہے تیرا، یاسمین نے کہا۔ تیرے باپ کو پتہ چل گیا تو گولی مار دے گا تجھے، وہ بولی۔ حمزہ بس سر جھکا کر رہ گیا۔ نائمہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کتنا مارا اسے، ایویں؟ اکلوتی بہن تھی وہ اس کی، اسے دکھ ہوا تھا۔ میں اس کی زبان بھی کاٹ دوں گی اب اگر اس نے بکواس کی تو، یاسمین بھڑک کر بولی تھی۔ کیا کہتے ہیں پھر آپ کے گھر والے؟ وہ اس دن شرمین کو ہوٹل لے کر آیا تھا۔ روز روز اس کے گھر تو جا نہیں سکتا تھا، فی الحال تو منع ہی کر رہے ہیں، اویس نے کہا۔
कभी मानेंगे भी? शर्मीन ने पूछा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, अवैस ने कहा। अपनी माँ को कहें कि जिसे मेरे पल्ले से बांध रही थी वो तो खूब रंग रंगियां बना रही है अपने शौहर के साथ। मुझे किस बात की सजा दे रही है? शर्मीन ने कहा। हाँ, ऐसे कह दूं ताकि वो अगर मानती भी हो तो ना माने। अवैस हंसा। फिर अब क्या करेंगे? उसने पूछा। अलीना के कोट में बाल डालिए, देखो, वो बोला। अवैस, ऐसे काम नहीं बनेगा। पूरा घर आपके खिलाफ है। पहले अपने वोट जमा करें, फिर इलेक्शन लड़ें, शर्मीन ने कहा। वो कैसे? अवैस समझ ना सका। मतलब ये कहते एक-एक करके सब घर वालों को राम करें, अकेले में एक-एक बंदे को कायल करें, फिर अम्मा और अब्बा से बात करें। शर्मीन ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था। रात के 10 बज रहे थे जब वो अपना सरहाना, मोबाइल और चार्जर उठाकर ऊपर आया और ठठक गया। नाइमा उसकी चारपाई पर लेटी हुई थी। नाइमा, हमजा ने धीरे से उसे पुकारा। वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। आंखें सुरखंगारा हो रही थीं। हमजा तड़प गया। वो रो रही थी। नाइमा, मेरा पुत्र क्या हुआ? हमजा ने उसे अपनी आगोश में लिया। वो फिर रो पड़ी। कुछ नहीं हुआ। वो आंखें साफ करते हुए बोली। फिर रो क्यों रही है? हमजा ने उसे अपने साथ लगाया हुआ था। चल मेरा बेटा, मुझे बता क्या हुआ है। वो खुद उसके आंसू खुश्क करते हुए बोला। वही जो आपके साथ हुआ है। नाइमा बिलक बिलक कर रो दी। हमजा दम बखूसा बैठा रह गया। मैं छोटी सी थी जब से ताई अम्मी के मुंह से सुन रही हूँ कि नाइमा मेरे जुबैर की दुल्हन बनेगी। अम्मी ने भी यही कहा कि नाइमा तो घर की घर में ही रह जाएगी। ताया ने भी कई बार इशारों के नाइयों में यही कहा, और अब दोनों ने चुपचाप से उसे रमल्ला के हस्पुर्द कर दिया। मैं क्या रहूं भी ना, मुझे दुख भी ना हो। वो रोते हुए कह रही थी। हमजा बस चुपचाप इसका सर थपकी गया। कुछ देर गुबार निकालने के बाद वो उठ खड़ी हुई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। नाइमा, हमजा ने उसे आवाज दी। हो सकता है जुबैर अब भी तेरा हो जाए, उसने धीरे से कहा। नाइमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो कैसे? उसने पूछा। मेरा साथ देना पड़ेगा, हमजा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। इस समय बस उसे रमल्ला की ख्वाहिश थी। अलीना ने चक्कर लगाया था। हातिम भी साथ आया था, और शर्मीन जी भी। इस हराफा को क्यों साथ लेकर आई है? घर का हर फर्द अलीना को घूर रहा था। मैं क्या करती? वो कहती मैं भी जाऊंगी। अलीना बेचारी बेबसी से बोली थी। हातिम और शर्मीन में अच्छा खासा झगड़ा हुआ। वो उसे साथ नहीं लेकर आना चाह रहा था, और ये मोहतरमा मुझसे पहले गाड़ी में बैठ गई। वो किचन में खड़ी रुखसाना के कानों में कहती चली गई। पता नहीं ये चुड़ैल कब पीछा छोड़ेगी। रुखसाना की जान पे बनी हुई थी। हातिम और शर्मीन रात का खाना खाकर चले गए थे। रमल्ला बस इससे सरसरी सा ही मिली थी। अवैस की तो शक्ल ही देखने को इसका दिल नहीं करता था। अलीना 2 दिन के लिए रुक गई थी। इसके जाने के बाद वो रमल्ला के कमरे में आई और काफी देर बैठी रही। एक वही थी जिससे बात करके थोड़ा बेहतर महसूस होता था। अगला पूरा दिन अवैस ने अलीना के कान भरने में गुजार दिया। वो बस जिद था कि वो रुखसाना से बात करे। रात के खाने के बाद अलीना ने जुबैर को बाहर आने का कहा। खैर है? जुबैर ने पूछा। रमल्ला नमाज पढ़ रही थी। अवैस भाई अपना केस लड़ने लगे हैं, वो धीरे से बोली। जुबैर एक नज़र रमल्ला को देखते हुए उसके पीछे बाहर निकल आया। अलीना ने इसका मुद्दा रुखसाना और रफ़ीक के सामने रख दिया। एक बार फिर वही चख पख, शोर शराबा, गालम गलोच। अवैस अपनी जिद पर कायम था। फिलहाल कोई भी उसके साथ नहीं था। 12 बज गए, लेकिन मामला किसी तरफ न लगा। जुबैर तो उठकर अपने कमरे में आ गया। रमल्ला सो गई थी। जुबैर ने उसकी पुश्त अपने सीने से लगाते हुए उसको खुद में भरा था। सोना ही है। वो कतई उठने के मूड में नहीं थी। जुबैर सरगोशियां कर कर के हाँ किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वो बेचारा चुपचाप उसे आगोश में लेकर खुद भी आंखें बंद कर गया था। वाकई शर्मीन ने ठीक कहा था। उसे पहले वोट बनाने चाहिए थे। सबसे पहला वोट शफीक का था। वो घर के झमेलों से दूर था, तो इससे बात करना आसान था। वो जल्दी मान गया। जाहिर है, कौन सा उसकी बेटी हातिम के साथ ब्याही हुई थी, और इसके नज़दीक भी वटा-सटा कुछ नहीं था। दूसरा वोट ज़रीना चौधरी का था, जो उसे यूं ही मिल गया। वो इस दिन फैक्ट्री से ज़रा जल्दी वापस आ गया था।
کپڑے چینج کر کے باہر نکلا اور کچن کی طرف آ گیا۔ رملہ اسی وقت کچن سے باہر نکلی تھی۔ کچھ کھانے کو دے دو نائمہ، بھوک۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ رملہ بس اسے ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ گئی، لیکن اویس نے اسے پکار لیا۔ وہ رک گئی، لیکن مڑی نہیں۔ رملہ، آئی ایم سوری، وہ بولا۔ رملہ اس کی بات سن کر دوبارہ آگے بڑھنے لگی تھی۔ رملہ، اویس نے کہا، اب کیا ہے؟ وہ قہر بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ رملہ، میرا صرف طریقہ غلط تھا، ارادہ نہیں، وہ بولا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ انچاہی بن کر زندگی کیسے گزار لیتی؟ اویس نے پوچھا۔ اوہ، تو میں تمہارے لیے انچاہی تھی، اس بات کا ادراک تمہیں عین بارات والے دن ہوا؟ رملہ سارے آپ جناب بھول گئی تھی۔ میں نے انکار کیا تھا، سب گھر والوں کے سامنے، وہ بولا۔ اویس، تمہارے اس انکار کی بڑی مہربانی، اب خدا کا واسطہ مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو، زہر لگتی ہے مجھے۔ تمہارے اس دن کے انکار کو زبیر نے اقرار میں بدل دیا تو سب ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا، اگر وہ مجھے نہ اپناتا، پھر کیا ہوتا؟ میں آج کس مقام پر ہوتی؟ وہ چیخ پڑی۔ تم جیسے خود غرض لوگ ہوتے ہیں جنہیں سوائے اپنی ذات کی اور کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، وہ بولی۔ اے رم اللہ، بس کر دے اب، معافی مانگ تو رہا ہے میرا بھائی۔ زرینہ نہ جانے کب نیچے آئی تھی، اس نے بس رم اللہ کو بولتے سنا تھا۔ مجھ سے معافی مانگ کر کوئی احسان نہ کرے یہ میرے سر پہ، بس اپنی شکل گم کر لے۔ رم اللہ نے کہا۔ تمیز سے بات کر، سمجھی؟ زرینہ وہیں تپ گئی۔ کس سے؟ اس سے جس نے یہ تک نہیں سوچا وہ ایک لڑکی کو نکاح والے دن انکار کر رہا ہے۔ رم اللہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ تو تجھے کیا فرق پڑا ہے؟ زبیر نے نکاح کر تو لیا ہے تیرے سے، عیش کر رہی ہے، کتے کی طرح پیچھے لگایا ہوا ہے اسے۔ زرینہ ہر حد پار کر گئی۔ تو تم بھی لگا لو اپنے کتے کو اپنے پیچھے۔ رم اللہ ہنسی۔ بکواس بند کر لے، سمجھی؟ وہ آگے کو آئی۔ اویس نے بمشکل سے روکا۔ کیا ہو گیا؟ رخسانہ بوکھلا کر کمرے سے باہر نکلی۔ امی اس کی زبان بند کروا لے، اب اسے کترنے والی ہو گئی ہے، زرینہ نے کہا۔ پہلے تو بتا کہ تو نیچے کیا کر رہی ہے؟ تجھے اوپر ہی مرے رہنے کو کہا تھا نا میں نے، رخسانہ نے کہا۔ پیاز لینے آئی تھی، وہ بولی۔ آج کے بعد میں تجھے نیچے نہ دیکھوں۔ انہوں نے اسے اوپر کو دھکیلا تھا۔ رم اللہ کی آنکھیں لبالب بھری ہوئی تھیں۔ جا اپنے کمرے میں، رخسانہ نے کہا۔ وہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اگلے 2 دنوں میں اویس نے اچھی خاصی لیپا پوتی کر کے زرینہ کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا۔ وہ تو ویسے ہی بے پیندے کا لوٹا تھی۔ بس، اٹھا لو برتن، زبیر نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا۔ رم اللہ نے چپ چاپ برتن اٹھائے اور کچن میں رکھنی چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ چائے، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ رم اللہ، زبیر نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی نہیں، وہ بولی۔ چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں سرخ سرخ سی تھیں۔ کچھ تو ہوا ہے، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ زبیر، میں کچھ دن امی کی طرف چلی جاؤں؟ رم اللہ نے پوچھا۔ پچھلے 2 ماہ میں اس نے پہلی بار یہ فرمائش کی تھی۔ زبیر دھیرے سے آگے ہوا اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ زبیر کا مرہمی لہجہ سنتے ہی اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ زبیر نے اسے بڑی محبت سے سینے سے لگایا۔ وہ آنسو بہاتی چلی گئی۔ زبیر بس اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا گیا۔ زبیر، میں نے یا میرے گھر والوں نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی آپ کے اوپر؟ اپنی مرضی سے شادی کی ہے آپ نے مجھ سے، پھر ہر کسی کو یہ کلک کیوں ہے کہ میں نے آپ کو پھانس دیا ہے؟ وہ بولی۔ زرینہ نے کچھ کہا؟ وہ آخر کو اس کا سگا بھائی تھا۔ رم اللہ کچھ نہ بولی۔ دنیا دو دھاری تلوار ہوتی ہے، کسی بھی صورت نہیں جینے دیتی۔ ہر قسم کی بکواس کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو۔ وہ اس کے آنسو خشک کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ زبیر نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ 1-2 ماہ، وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولی تھی۔ زبیر کی آنکھیں پھیر گئی۔ پھر مینوں بھی نال ہی لے جا، کیونکہ 2 ماہ میں پیچھے تو ویسے ہی جھلا ہو جاؤں گا۔ زبیر نے جس انداز میں کہا، رم اللہ کو ہنسی آ گئی۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔
उसने दोबारा से गले से लगा लिया। सुबह दफ्तर जाते हुए छोड़ दूंगा। ठीक है? ज़ुबैर ने कहा। ओके, थैंक यू। रमल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इतना सूखा सा थैंक यू नहीं लेना, वो बोला। वो चंद लम्हे मुस्कुराती नजरों से उसके दिख रही, फिर धीरे से उसके गाल को छू लिया। थोड़ा सा और गीला करो, वो उसे अपने करीब करते हुए बोला। रमल्ला हिचकिचा गई। ज़ुबैर उसकी आंखों में झांक रहा था। कल तो तुमने चले जाना है, फेयरवेल की ट्रीट तो दे दो मुझे आज रात। रमल्ला ने चुपचाप अपना आप पूरी तरह से उसे अपना सौंप दिया था। आंटी, रुखसाना किचन में थी जब वो इनके पीछे जा खड़ी हुई। हाँ पुत्र, वो बोली। मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी की तरफ जा रही हूँ। ज़ुबैर जाते हुए मुझे उधर छोड़ देंगे। उसने कहा। खैर तो है? उन्होंने पूछा। जी, वैसे ही, वो बोली। चंगा। वो इसका कंधा थपथपा कर चल गई। रमल्ला ने अपना बैग तैयार कर रखा था। ज़ुबैर ने नाश्ता करते हुए उसकी तरफ देखा। नाश्ता तो कर लो, उसने कहा। अम्मी कह रही थी उधर ही आके कर लेना। वो एवं ही मुस्कुराई जा रही थी। ज़ुबैर बस कंधे उचकाकर रह गया। वो अपना बैग उठाकर उसके पीछे ही बाहर निकल आई। बन्नो रानी किधर चली? ज़रीना ने हाँक लगाई थी। रमल्ला खामोश रही। मैंने पूछा, डोला किधर चला? जवाब न पाकर वो मोटरसाइकिल के पास चली आ गई। तू दिन में 10 दफ़ा उतर के आती है नीचे। तुझसे कभी पूछा है कि क्यों आई है? ज़ुबैर को गुस्सा आ गया। मैं तो वैसे ही। ज़ुबैर ने उसकी बात काट दी। तो माँ है मेरी जो तूने वैसे ही पूछा है? वो तुड़का। अच्छा जी नहीं पूछती, गलती हो गई। ज़रीना ने खटाक से हाथ जोड़े थे। 24 घंटे बकवास ना भी करो ना तो दिन गुजर जाता है। आज़मा कर देख किसी दिन। ज़ुबैर ने उसके 1 साल बड़े होने का ज़रा लिहाज़ नहीं किया था। बस कहरबार नज़रों से रमल्ला को वो देखती रह गई। रमल्ला अपने मेके क्या गई, अवैस को मौका मिल गया। उसने पीछे से अपनी शादी का वो कदर उठाया कि अमान उल हफीज़। सबसे पहले तो उसने ज़ुबैर को काबू किया। इसके सामने जो जहान के रोने पिटने, वो हर बार कान लपेट कर उठ जाता। ज़ुबैर और अलीना इस मामले में एक थे। हमज़ा को भी उसने धीरे-धीरे हमनवा बना लिया। अवैस किससे शादी करता है, उसे वैसे ही इससे कोई सरोकार नहीं था। वो तो इन दिनों अपनी ही उलझनों में फँसा हुआ था। उस दिन भी वो अपना मुद्दा बिमा अपने वोटर्स के लेकर रफ़ीक साहब की अदालत में पेश हो गया। शफ़ीक भी आया हुआ था। पूरा घर सवाए रमल्ला के रफ़ीक साहब के कमरे में जमा था। अवैस तो जिस मर्ज़ी लड़की से शादी कर ले। इसके अलावा, रफ़ीक ने कहा। इसमें क्या कमी है? अवैस ने पूछा। वो अलीना की नंद है और ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। वो बोले। अब मुझे ये तो कोई जवाज़ नहीं हुआ। दुनिया में सारे वट्टे-सट्टे उजड़ते ही तो नहीं हैं, बसते भी तो हैं। वो बोला, कोई हज़ारों में से एक बसता है, बाकी एक उजड़े तो दूसरा भी साथ ही उजड़ता है। पुत्र, मेरी बात सुन। आज तो इस लड़की को ब्याह कर इस घर में लेकर आता है। कल कल को तेरी और उसकी नहीं बनती। इख्तलाफ हो जाते हैं। ज़ाहिर है, शादी के बाद वो तेरी बीवी होगी। बीवी और महबूबा में बड़ा फ़र्क होता है अवैस। बीवी के नखरे महबूबा की तरह नहीं उठाए जाते। तो इस पर पाबंदियाँ भी लगाएगा। उसकी किसी न किसी बात पर गुस्सा भी करेगा। उसके खर्चे ही पूरे नहीं होने तुझसे। वो रूठ कर वापस मेके चली गई। तो फिर काम खराब हो गया ना। उसी वक्त हाथों में दिल में तेरी बहन के लिए बाल आ जाएगा पुत्र। मेरी बात ये लिख के रख ले कि अगर कभी शर्मीन तुझसे लड़कर मेके गई तो अलीना वापस जरूर आएगी। हाथम कोई दिल का बादशाह नहीं है जो तेरे दिल बहन तो जो तेरी बहन को बसा के रखेगा। रफीक साहब कहते चले गए। हो सकता है ये सब आपके खदशात ही हों। ऐसा कुछ हो ही ना। अवैस ने कहा। क्या गारंटी है इस बात की? रुखसाना इस सारे मामले में पहली बार बोली थी। क्या मतलब? अवैस ने कहा। मतलब क्या ज़मानत है इस बात की कि आने वाले वक़्तों में तेरे इस रिश्ते की वजह से अलीना बाप के दर पर आकर नहीं बैठेगी? रुखसाना ने पूछा। अम्मी, मैं कैसे अभी से ज़मानत दे दूँ? वो बोला। क्यों? तो अपनी ज़मानत नहीं दे सकता? रुखसाना ने कहा। अपनी तो दे सकता हूँ लेकिन रुखसाना ने टोका। लेकिन क्या? इश्क लड़ा सकता है, घर वालों से ज़िद करके शादी कर सकता है, लेकिन अपनी महबूबा की ज़मानत नहीं दे सकता। रुखसाना ने कहा। अम्मी ये क्या बात हुई भला?
अवैस तंग आ गया। इसके सारे वोटर्स खामोश तमाशाई बने खड़े थे। यही बात है। दे ज़मानत कि कल-कला को तेरी या तेरी छमक-छल्लों की वज़ह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद नहीं होगा, रुखसाना ने कहा। अवैस ने बेबस सा होकर रफ़ीक साहब की तरफ देखा। वो कंधे उचका गए। दे ज़मानत और जाकर करवा ले शादी इससे। रुखसाना ने फ़ैसला सुना दिया। वो भला कैसे दे सकता था वक़्त से पहले ज़मानत? रमल्ला को वापस आए 4 दिन हो गए थे। उसके आते ही रुखसाना ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। देख पुत्र, तेरे आने से पहले भी इस घर के सारे काम ही हो रहे थे। नाइमा, अलीना और ज़रीना सब मिलकर करती थी। पुत्र तू नहीं भी करेगी ना तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो शरीका होता है ना, ये ज़मीन पर पैर नहीं पड़ने देता। मेरी अपनी बेटी कल को उठ के मेरे मुँह पर कह देगी कि बहू को रानी क्यों बनाया हुआ है। सो पुत्र, अपने सारे काम खुद क्या करने हैं तूने। मुझे पता है, वो तो शादी के अगले दिन ही खुद कर रही है। अपना साफ करना, बर्तन धोने, कपड़े धोने, इस्त्री करना सब कुछ। इसके अलावा खुद बता दे कि अपने ज़िम्मे क्या लेगी। घर की सफाई, 3 वक़्त के बर्तन या किचन? उन्होंने पूछा। आंटी, जो मर्ज़ी दे दे, उसने कहा। ज़रीना ने किचन के लिए साफ हरी झंडी दिखा दी। नाइमा भी पका-पका कर थक चुकी थी, तो किचन उसके ज़िम्मे आ गया। सुबह का नाश्ता, रोटियाँ मैं खुद तेरे साथ बनवा दिया करूँगी। दोपहर का सालन और रोटियाँ, शाम की हांडी और रोटियाँ। उसने इस बात में सर हिला दिया। कामचोर तो वो नहीं थी। अपने घर में भी तो यही सब करती आई थी। वहाँ भी उसने और नाइला ने काम बाँट रखे थे। अभी उसने चुपचाप किचन की ज़िम्मेदारी सँभाल ली। पहले पहल तो उसके पकाए पर सौ-सौ नुक्स निकले, खास तौर पर नाइमा और ज़रीना। कभी-कभार रफ़ीक साहब भी ज़्यादती कर जाते थे। धीरे-धीरे रूटीन सेट हो गई। रुखसाना की अदम मौजूदगी में वो गैस पर रोटियाँ भी खुद ही बना लेती थी। वो भी आम दिनों जैसे ही एक शाम थी। रमल्ला किचन में शाम की हंडिया बना रही थी। साथ-साथ इसने आटा गूँध लिया। हमज़ा अस्पताल से वापस आया था। मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर चला आया। एक नज़र उसे किचन में खड़े देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए ऊपर चला गया। नाइमा ऊपर ही थी। कुछ देर बाद वो नीचे आई और हमज़ा वाले कमरे में चली गई। मगरिब की अज़ानें होने वाली थी। रमल्ला नमाज़ पढ़ने के लिए किचन से निकली तो नाइमा ने उसे आवाज़ दे दी। मैंने शोकेस साफ किया था। अपने बर्तन सेट कर लें। फिर न कहना तोड़ दिए। उसके सारे बर्तन इधर-उधर बिखरे पड़े थे। हमज़ा कहाँ है? उसने दरवाजे से बाहर जाती नाइमा से पूछा। बाहर गया है, वो कहकर बाहर निकल गई। रमल्ला ने एक लंबी सांस भरते हुए लाइट जलाई और तेजी से अपने बर्तन सेट करने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एकदम लाइट बंद हो गई। तौबा! झुंझलाकर उसने बर्तन नीचे रखे और टटोलकर बाहर की तरफ बढ़ी। कमरे में घटाटोप अंधेरा था। तभी हमज़ा अंदर दाखिल हुआ। वो उसे अपने सामने देखकर चौंक सी गई और साइड से निकलने लगी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो सारे आदाब भुलाए बैठा था। मैं सिर्फ अपने बर्तन सेट करने आई थी, रमला ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दफतन हमजा ने उसकी कलाई जकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है? वो फंकार कर बोली। जुबैर से निकाह क्यों करवाया? तुम जानती थी ना कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। हमजा ने उसे कलाई से खींचकर ऐन अपने सामने खड़ा कर लिया। कमरा हनूस तारीक था। रमल्ला की कलाई हमजा के हाथ में थी। अचानक किसी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रमल्ला का दिल उछलकर हलक में आ गया। हमजा, छोड़ो मेरा हाथ। उसने पूरा जोर लगाया। रमल्ला, हमजा ने उसे यूं ही कलाई से पकड़े अपनी तरफ खींचा था। उसने अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर रखते हुए खुद को इससे टकराने से रोक बचाया। आई लव यू। हमजा की उंगलियां उसके बालों में सरसराई थीं। ताई अम्मी, ताई अम्मी। नाइमा अपना पूरा गला फाड़ते हुए बाहर निकली थी। फूली-फूली सांसों के साथ वो दौड़ती हुई बाहर रुखसाना के पास आई थी। इधर आएँ, जल्दी करें। नाइमा ने उन्हें हाथ से पकड़कर उठाया था। क्या हो गया? रुखसाना बौखला गई। इधर तो आएँ, सबूत माँगा था ना आपने कि आपकी बहू बहुत बाकिरदार है। मेरे साथ सबूत के साथ बात करना। इधर आएँ, आपको सबूत दिखाऊँ। वो इन्हें लिए अंदर आ गई। ज़रीना भी पीछे-पीछे ही थी। नाइमा ऐन हमज़ा के कमरे के आगे आकर रुक गई। ये देखें सबूत। नाइमा ने धाड़ से कुंडी खोलकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। ज़रीना ने इसी वक़्त मेन स्विच नीचे किया था।
रुखसाना अंदर का मंज़र देखकर हकदक रह गई। रमल्ला का दुपट्टा उसके कदमों में पड़ा था और वो पूरी तरह हमज़ा की बाहों में कैद थी। दरवाज़ा खुलते ही हमज़ा ने उसे आज़ाद किया था। वो बाहर को भागी। सामने रुखसाना खड़ी थी। आंटी, मैंने आंसुओं का गोला उसके गले में ही अटक गया। ज़ुबैर, अचानक उसके मुँह से सरगोशी सी निकली थी। रुखसाना ने पलट कर देखा। ज़ुबैर ऐन इनके पीछे खड़ा था, साकत सा। रमल्ला बिना दुपट्टे के दरवाजे के पास खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था। होंठ काँप रहे थे। सांसें लेना दुश्वार हो रहा था। हमज़ा इससे 3-4 कदम पीछे था।